Okay, so now let's discuss new problem on basis of additional parameter. Okay, so first of all, write the expression of f of d and function of q. So that is f of d equal to d square pi d plus 6, and q is nothing but e to the power minus 2x sec square x 1 plus 2 tan x. Okay, so now first step to find CF. So for this, put f of d, I mean d square plus pi d plus 6 equal to 0. Then we will get the value of d is minus 2 and minus 3. Is it clear? Yes, sir. Okay. So then what is the YCF? Since roots are real and distinct, so in that case, YCF will be C1 e to the power minus 2x minus 2x. and C2 e to the power minus 3x, where Y1 is nothing but coefficient of C1, that is e to the power minus 2x, and Y2 is to the power minus 3x. Okay, so in next step, we have to find Wronskian constant W. What is the formula of W? That is Y1. Y1, Y2, Y2 Y1 dash, Y2 plus dash. Y2 dash. Correct. So first is e to the power minus 2x, and derivative of this is e to the power minus 2x into minus 2, and y2 is e to the power minus 3x, and derivative of this is minus 3 to the power minus 3x. Okay, so we can take common e to the power minus 2x and e to the power minus 3x both, because in first column e to the power minus 2x and minus 2x both are same terms. So we can common e to the power minus 2x as well as e to the power minus 3x. So finally 1, 1, minus 2 and minus 3. So here e to the power minus 5x and minus 3 plus 2. So finally minus e to the power minus 5x, right? So this is the value of W. Next, write the expression of yp. So yp is nothing but uy1 plus by2, where u equal to integration of Minus integration. minus q upon W Y2 dx. y2 dx. So here minus sign is outside, and then q is nothing but e to the power minus 2x and sec square x into 1 plus 2 tan x into y2, and y2 is minus 3x e to the power, and then whole divided w, that is minus e to the power minus 5x. Okay, you can see that e to the power minus 2x and e to the minus 3x, that is the minus 5x, both are cancelled to each other. So finally we will get sec square को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐसा ही रख सकते हैं. So that is 1 plus 2 tan x in bracket sec square x. Now integrate this. So for this integration, we have to put tan x equal to t. So finally we will get sec square x dx equal to dt. Therefore u is nothing but 1 plus 2t in bracket, that is dt. Understood? Yes, sir. So now integration of 1 is t, and t का integration t square by 2, now square 2 cancel, and again substitute the value of t, that is tan x. So tan x plus tan square x, this is the value of u. Now find v. So expression of v is nothing but q upon w into y1 dx, and here q is nothing but e to the power minus 2x into sec square x into 1 plus 2 tan x, and e to the power minus 2x divided by minus e to the power minus 5x. Now e raised to minus 4x and e to the power minus 5x cancel to each other. So finally we will get minus integration e raised to x. इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, so that is sec square x plus 2
tan x into sec square x. So you can see that this is the formula of e raised to x, f of x, and f dash of x. And answer of this formula is e to the power x into f of x. Here f of x is sec square x, and derivative of function, you can see the derivative of sec square is what? 2 sec x, and further derivative of sec x, that is sec x into tan x, so sec square into tan x. तो ये पूरा मैच हो रहा है, ये डैश एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है. तो फाइनली आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिख सकते हैं e raised to x into sec square x. So this is the value of v. Now you can write yp equal to uy1. सर माइनस का साइन किधर गया? Yes, minus sign है. So v y2. u का वैल्यू मिला है tan x plus tan square x, right? And y1 is e to the power minus 2x. Since the value of v is negative sign, that's why minus e to the power x sec square x in bracket e to the power minus 3x. Is it clear? Yes, sir. Simplify this. Yes, sir. Either e to the power minus 3x and e raised to x. So finally we'll convert into the power minus 2x. Then you can common e to the power minus 2x. So in bracket that is tan x plus tan square x and minus sec square x. So tan square x minus sec square x is nothing but that is the identity, and answer of this is minus 1. So finally tan x minus 1 e to the power minus 2x. This is the value of y. Okay, and then you can write general solution equal to yc plus y2. Any doubt? No, sir. Okay, so note down all. So now discuss another problem based on the variation of parameter. So first of all, write the value of function of f of d. So that is d square minus d minus 2, and here q is 2 log x plus 1 by x plus 1 upon x square. So first of all, find the value of ycf. So therefore put d square minus d minus 2 equal to 0. Tell me the roots of this one. Okay. Students, tell me the roots of d square minus d minus 2. Yes, students, what are the roots of d square minus d minus 2? Sir, 2 2 minus 1. minus 1. Okay. Then YCF will be C1 e to the power 2x and C2 e to the power minus x. Therefore, Y1 equal to e raised to 2x and Y2 equal to e raised to minus x. In next step, you have to find Wronskian constant, that is W. Formula of W is Y1, Y2 and derivative of its, that is Y1 dash and Y2 dash. Now substitute the value of Y1, Y2, that is e raised to 2x, and derivative of e raised to 2x is the 2 e raised to 2x, and y2 is nothing but e raised to minus x, and derivative of it is minus e to the power minus x. Is it clear? Now you Yes, can sir. common, yes, now you can common e to the power 2x as well as e to the power minus x. So 1, 2 and 1 minus 1. Now simplify this expression e to the power x, and that is minus 1 minus 2. So finally we will get e to the power x divided by minus 3. Correct? So go for yp. So now expression of yp equal to uy1 plus vy2, where u equal to minus of q upon w into y2 dx. Now substitute the value of q and w. So q is nothing but 2 log x plus 1 by x
plus 1 upon x square, and y2 is e to the power minus x, and w is e to the power x divided by minus 3. Is it clear? सॉरी, ये -3 डिवाइड में नहीं है, माय मिस्टेक. सर डिवाइड में नहीं होना चाहिए ना. -3 in multiply. वही सर. So -3 and plus minus plus, so finally 3, and e to the power minus x 2 log x plus 1 by x plus 1 upon x square dx. Once again I check expression of q. Yes, that is correct. So in that case, apply the same formula जो हमने previous question में use किया था. So that is e to the power ax, that is a function of x and plus f dash of x. The integration of this formula is nothing but e raised to ax into f of x. So here a is nothing but -1. तो आपको पहले तो थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो -3 and e to the power minus x minus 2 log x and minus 1 by x and minus 1 upon x square. Now break 1 upon x is nothing but minus 2 upon x and plus 1 upon x. We can write the 1 upon x like that, right? Yes sir. तो -2 माइनस कॉमन लेते हैं हम लोग. So this is like -3 e to the power minus x and minus को कॉमन लिया, so that is 2 log x plus 1 by x, and in second in bracket you can write 1 upon x minus 1 upon x square. So you can clearly see that derivative of just a second. Actually हम 2 लोग by x आएगा ना सर? हाँ नहीं, इधर 2 by x आएगा. Once again I check. -2 log x ऐसे माइनस कॉमन लिया और इसको यहाँ पे लिखा अगर, so that is minus sign, and some arrangement is missing. Once again I check. -2 log e x raised to minus 2x आएगा सर. is to minus कर लेंगे क्या? x, शायद e to the power minus 2x आएगा. Yes, because इधर e to the power minus x है ना इधर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. Yes, correct. तो here -2. तो अगर -2 है तो हम लोग -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे हियर. इधर -2 कॉमन लिया तो इधर 2 नहीं होगा और अब करेक्ट है. ठीक है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ही लिखा, ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे. तो इसमें से -2 कॉमन लिया तो log x plus 1 by x, and log x का डेरिवेटिव is 1 by x, and 1 by x का डेरिवेटिव is the -1 upon x square. So finally first one is the function and second is its derivative, और here -2 is there, जिसकी वजह से मिस्टेक हो रहा था. तो फाइनली -3 e to the power -2x, and answer, this is your complete function, so that is log x plus 1 by x. Understood? सर वो -3 पे डिनोमिनेटर में होगा ना, वो w का है. हाँ राइट. तो -3 एक्चुअली वो मल्टीप्लाई में था, तो दैट इज एक्चुअली 1/3 आएगा वो, उसको मैं 3 इनवर्स लिख देता हूँ, दैट इज बेटर. लास्ट स्टेप में उसको 1/3 कर देता हूँ.
here you can write 1 by 3. ठीक है, so this is the value of u. Now find v. So expression of v is nothing but q upon w into y1 dx, and q is nothing but e to the power minus 2x. One second, I check. सॉरी, e to the power minus कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉग का ही करना है. So 2 log x plus 1 by x plus 1 upon x square, and y1 is e raised to 2x, and w is minus 3 raised to x dx. So finally you can write minus 1 by 3 e to the power x and 2 log x plus 1 by x plus 1 upon x square. So once again split 1 by x like 2 by x and minus 1 by x, right? ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग 1 by x को. Yes, sir. Yes, और sir. बाद में उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, एक का फंक्शन दूसरा होना चाहिए, एक का डेरिवेटिव दूसरा. सो ऐसे केस में 2 log x का डेरिवेटिव 2 by x होगा, एंड 1 by x का डेरिवेटिव इज minus 1 by x का डेरिवेटिव इज plus 1 by x स्क्वायर. तो यहाँ पे फंक्शन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं. फंक्शन ऐसे डिसाइड करना है सो दैट उसका डेरिवेटिव अंदर प्रेजेंट. तो e raised to x, तो पहला फंक्शन लिखा e raised to, ये फंक्शन वाला पोजीशन है और ये उसके डेरिवेटिव का पोजीशन. तो 2 log x का डेरिवेटिव आएगा 2 by x, तो इधर 2 by x लिखना है. बच गया इधर minus 1 by x, और minus 1 by x का डेरिवेटिव इज द plus 1 upon x स्क्वायर. तो ये इसका ये तो e raised to 2x आएगा ना, सॉरी e raised to 2x आएगा ना. e raised to 2x आएगा क्या? वन सेकंड, आई चेक. e raised to 2x नहीं आएगा ना, देखो ना यहाँ पे 2x में से x निकल गया ना एक नीचे वाला, राइट? Yes, So sir. finally we can write minus 1 by 3, and ये e raised to x ये फंक्शन हो गया पहला ब्रैकेट, एंड सेकंड ब्रैकेट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो फाइनली आंसर इज e raised to x 2 log x minus 1 by x. This is your v. Now you can write yp equal to uy1 plus vy2. ओके, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं. अंडरस्टूड? एनी डाउट? No, sir. No, sir. Okay. So first of all, note down all this thing, and then we will discuss the new problem. इसके बाद लेक्चर वाइंड अप होगा. So okay, so let second order differential equation, that is a naught into y double dash plus a1 y single dash plus a2 into y equal to function of x. Now divide by a naught throughout the expression, so then we will get y dash, that is a0, sorry 1 plus a1 y1 upon a naught plus a2 upon a naught y equal to q upon a naught. So let's consider a1 upon a naught equal to some constant p, and a2 upon a naught is some constant small q, and q upon a naught consider as f of x. So finally we will get p y dash plus q y equal to function of x, right? यहाँ तक किसी को डाउट है? मैंने क्वेश्चन को सिर्फ प्रॉपर अरेंज किया, राइट? Yes, Let sir. y cf is c1 y1 c2 y2. यही मिलता है ना हम लोग को, c1 y1 c2 y2, where y1 and Yes, y2 sir. are the solution of differential equation y double dash py dash plus qy equal to 0. क्योंकि जब y cf निकालते हैं तो हम लोग राइट साइड को 0 लिखते हैं, तो ये इसके सोल्यूशन है. तो अगर इसका सोल्यूशन है
इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का, अगर कोई किसी इक्वेशन का कोई फंक्शन सॉल्यूशन है, दैट मीन्स कि वो फंक्शन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे ये प्रूफ मतलब पहले से ही मालूम है कि y1 y2 तो हम लोग ऐसे ही लेते हैं कि वो मतलब इसको जीरो करके ही y1 y2 आता है। तो अगर इसको जीरो करके y1 y2 आता है तो y1 y2 पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। देयरफॉर यू कैन राइट y1 डबल डैश py1 dash qy1 equal to 0 and y2 double dash plus py2 single dash plus qy2 just equal to 0। यहाँ तक सबको समझ में आया? y1 y2 उसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को। इसमें y को y1 से रिप्लेस किया और y को y2 से रिप्लेस किया तो दोनों जीरो ही आएगा, बिकॉज ये इसके बेसिस पे y1 y2 मिला है। समझ रहे हैं क्या? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ yp लेते हैं। सो yp हम लोग कैसा लेते हैं? uy1 प्लस vy। अब ये भी सॉल्यूशन है, इट इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस py सिंगल डैश प्लस qy इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। देयरफॉर ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम लोग इधर लिख देंगे yp डबल डैश प्लस yp सिंगल डैश प्लस q इंटू yp, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इज इट क्लियर? बोलो, यहाँ तक समझा? हाँ सर। अभी yp का जो एक्सप्रेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव होता है, तो d अपॉन dx स्क्वायर ऑफ yp का एक्सप्रेशन दैट इज uy1 प्लस vy2 plus p into single derivative of yp, and yp is nothing but uy1 plus vy2 and plus q into yp, that is uy1 plus vy2, and this is equal to function of x. Now simplify this expression, I mean find the double derivative of that. तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, बिकॉज इसका डबल डेरिवेटिव निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ही फर्दर डेरिवेटिव यहाँ लिखना है। तो सिंगल डेरिवेटिव बोलो, तो इसमें दो फंक्शन है, पहले में भी u और y1 है, दूसरे में भी y2 है। u और y1 y2 सब के सब फंक्शन ऑफ x है, तो पहले में भी u इंटू भी लगेगा, दूसरे में भी u इंटू भी लगेगा। तो यहाँ पे u y1 डैश प्लस u डैश y1, ये मैंने पहले वाले का u भी बनाया, तो दूसरे वाले का u भी बनाते हैं। तो v y2 डैश सॉरी हाँ बराबर करेक्ट y2 डैश प्लस v1 डैश y2। इज इट क्लियर? और rest of function as it is, that is uy1 plus vy2, this is equal to function of x। यहाँ तक समझ में आया? अभी आपको पहले का डेरिवेटिव निकालना, तो ये जो अभी अभी आपने p के बाजू में जो लिखा है कोएफिशिएंट, इसी का डबल डेरिवेटिव निकालना। तो इसमें आप देख रहे हो कि टोटल 4 फंक्शंस हैं, दो दो के पेयर के 4 फंक्शन है, तो इनका डेरिवेटिव निकालते हैं। बोलो, पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, तो क्या लिखोगे? u y1 डबल डैश प्लस u डैश y1 डैश, करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। प्लस अब इसका डेरिवेटिव निकालो u इंटू वी के अकॉर्डिंग, तो u डैश u y1 डैश प्लस u डबल डैश एंड y1 एज इट इज, करेक्ट? समझ लो, अभी ये जो मैंने अंडरलाइन किया अभी लेटेस्ट, इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला। अब थर्ड वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसमें u इंटू भी लगाओ, तो v y2 डबल डैश प्लस v सिंगल डैश इंटू y2 सिंगल डैश। क्लियर? लास्ट टर्म बचा है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो नीचे लिख देता हूँ, तो बोलो बोलो। अब एक डेरिवेटिव आप तो बताओ, क्या लिखेंगे इसका डेरिवेटिव? V double dash y2 v डबल डैश y2
आगे v सिंगल डैश y2 डैश, सिंगल y2 डैश। करेक्ट। तो ये जाके पूरा एक्सप्रेशन ऑफ हो गया इतना। इसमें कोई किसी को डाउट है? अभी आप फर्स्ट थ्रू आउट क्या करो, y1 डैश सर्च करो। देखो हर एक के पहले टर्म में y1 डैश है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ u कॉमन ले लिया, तो मुझे y1 डबल डैश प्लस py1 सिंगल डैश, मतलब मैं सबका पहला टर्म डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें u कॉमन निकल रहा है, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे फाइनली qy1 मिल जाएगा, करेक्ट। अभी आप v कॉमन लो, v कहाँ कहाँ पे है, देखो यहाँ पे v है, इसमें के अंदर से, इसके अंदर से और इसके अंदर से v कॉमन ले लो, तो क्या नजर आएगा बोलो? y डबल डैश 2 y2 डबल डैश प्लस y1। हाँ y1 लिख, बाजू p है तो p भी लिखेंगे एंड प्लस, राइट। यस। रेस्ट ऑफ पार्ट लिखते हैं प्लस बाकी के टर्म्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो नीचे लिख देता हूँ प्लस। बोलो क्या क्या बच गया, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने कंसिडर किया है। मैंने इसको भी ले लिया एंड यू वाले को ले लिया, ये ले लिया, मतलब जो हाईलाइटेड है वो कंसिडर हो चुका है, तो रेस्ट ऑफ पार्ट वो y1 है ना? हाँ y1 2 y1 कहीं नहीं है, समझा नहीं, कहाँ डाउट है? अभी जो ग्रीन वाला सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, लिख दिया ना हमने इधर फर्स्ट बॉक्स एंड सेकंड ब्रैकेट में, रेस्ट ऑफ पार्ट लिखते हैं ना हम लोग, u1 हाँ डैश y1 डैश, ये u1 डैश और y1 u1 डैश ये 2 टाइम्स हो जाएगा नहीं, u डबल डैश y1 ये पहले ब्रैकेट में मिला, p के बाजू में क्या क्या मिला, तो u1 डैश y1 प्लस v1 डैश y2, तो सारे टर्म्स लिख लिए हम लोगों ने, बोलो यहाँ तक कंफर्टेबल है सब लोग? सर। ओके तो आप ये देख सकते हो, ये फर्स्ट टर्म जो लिखा है, ये जो फर्स्ट टर्म लिखा है और ये सेकंड ब्रैकेट लिखा है, इसका वैल्यू ऑलरेडी 0 है, ये बात मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लिख के दिया था, देखो है कि नहीं? तो ये दोनों ऑलरेडी 0 है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 डाल देंगे, तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके ये तो दोनों 0 हो जाएगा, फिर भी लिख देता हूँ u इंटू 0 v इंटू 0 प्लस ये फर्स्ट ब्रैकेट में है दैट इज u डबल डैश y1 प्लस 2u सिंगल डैश y1 सिंगल डैश, नहीं सॉरी इसमें और भी कुछ टर्म था जो हमने लिखा नहीं, ये वाला भी टर्म्स तो बाकी है अभी, इसके अंदर प्लस 2v1 डैश y1 डैश प्लस v डबल डैश y1 ये भी तो बाकी है, ठीक है। यहाँ जाके ब्रैकेट क्लोज होगा ना कि यहाँ, देखो ना ये दो 2 टाइम्स है, ये और ये मिला के 2 टाइम्स है, ये सिंगल टाइम्स है, तो ये सब भी तो लिखेंगे ना इसमें, जैसे u वाला लिखा वैसे v वाला भी, तो इनको भी लिखते हैं प्लस 2 टाइम्स v1 डैश y2 डैश प्लस v डबल डैश y2 and plus p times of u1 dash y1 plus v1 dash y2 equal to function of x. Okay, so मुझे बताओ राइट साइड में p का कोएफिशिएंट क्या है? एक्चुअली राइट साइड में p है ही नहीं, राइट साइड में यहाँ पे सिर्फ f ऑफ x है, तो राइट साइड में p नहीं है, तो अगर मैं कोएफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ तो p का कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये इसका वैल्यू
बिकॉज राइट साइड में कोई भी p का एक्सप्रेशन नहीं है, प्लस p करके कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगा, समझा? तो इसको लिख देता हूं मैं u डैश y1 प्लस v डबल डैश सॉरी v डैश सिंगल डैश है सॉरी y1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। और बाकी का ये जो पार्ट है ये सब फंक्शन ऑफ x है और इधर भी फंक्शन ऑफ x है, तो इसको हम लोग कंप्लीटली u डबल डैश y1 प्लस 2 टाइम्स u सिंगल डैश y1 and 2 times v single dash y2 plus v double dash y2 equal to function of x लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बोलो यहाँ तक कंफर्टेबल है? ये समझा ना 1 by 1? yes sir. अब आते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड में, डी बाई डी एक्स लगाते हैं u डैश y1 प्लस v सिंगल डैश y1 सॉरी नॉट y1 दैट इज y2, ये एक्चुअली 2 लिखा है वो गलती से 1 दिख रहा है, दैट इज y2 एंड दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। दोनों साइड में डेरिवेटिव कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव बताओ, तो u डबल डैश y1 u सिंगल डैश y1 सिंगल डैश प्लस v डबल डैश y2 डैश y2 एंड v सिंगल डैश y2 डैश। एक बार इसमें u इंटू भी लगा के ये दोनों टर्म लिखा, इस बार इसमें u भी लगा के ये दोनों टर्म लिखा एंड दिस इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कंफर्टेबल है? Yes sir. ओके, तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए किया सो दैट ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है ना इसको सिंप्लीफाई कर सके। तो मुझे बताओ, अगर इसको जरा और प्रॉपरली अरेंज करता हूँ, u डबल डैश y1 एंड v डबल डैश ऑफ y2, मतलब ये टर्म और ये टर्म को साथ में लिखा, रेस्ट ऑफ टर्म को मैं वो साइड में भेज देता हूँ, दैट इज माइनस ऑफ u डैश y1 डैश एंड प्लस v डैश y2 डैश, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में ये डबल डैश और ये डबल डैश जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों की जगह पे मैं ये रिप्लेस करने वाला, राइट? तो 2 और 3 के बेसिस पे बताओ डायरेक्टली क्या लिखोगे? फ्रॉम 2 एंड 3 वी विल गेट, बोलो, ये पूरा जो सिंगल दिख रहा है ना आपको डबल डैश वाला, जो मैंने अंडरलाइन किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो उसकी जगह आप माइनस u डैश y1 डैश v डैश y2 डैश लिख सकते हैं, और रेस्ट ऑफ पार्ट एज इट इज है u डैश y1 डैश 2 टाइम्स v डैश y1 डैश this is equal to f of x. So finally we will get, ये 2 टाइम्स है, ये सिंगल टाइम्स है, ये कट के फाइनली सिंगल टाइम बचेगा u डैश y1 डैश प्लस v डैश y2 डैश इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2 को भी कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लिखा है u डैश y1, ठीक है, u डैश y1 एंड v डैश y2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स मेथड इज द बेस्ट मेथड। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ। सो हम लोग को u डैश कैलकुलेट करना है और v डैश कैलकुलेट करना है, ये मैं इधर क्लियर कर देता हूँ। तो जो कैलकुलेट करना रहता है उसको इधर लिखते हैं, इधर राइट साइड ऐसे लिखते हैं ना मैट्रिक्स फॉर्म में, 11th-12th में पढ़ा रहेगा। तो u डैश का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? एक्चुअली पहले इक्वेशन 2 का कोएफिशिएंट लिखता हूँ, पहले 2 लिखूंगा और फिर 4 लिखूंगा।
तो 2 का कोएफिशिएंट में y1 है और इधर y2 है, और 4 के कोएफिशिएंट में y1 डैश है और y2 डैश, और दिस इज राइट साइड में 2 वाला 0 है और इधर f ऑफ x है। तो इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं इसको a, इसको x और इसको b पकड़ूं, तो a x इक्वल टू b, तो आपको मालूम है इसको सॉल्व करने के लिए x का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज a इनवर्स ऑफ b, राइट ना। तो मुझे a का इनवर्स निकालना है और फिर b से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन a है। तो अगर उसका हम लोग इनवर्स निकालें, तो इनवर्स निकालने के लिए बहुत सिंपल है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। a b c d अगर ऐसा है तो इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे एंड फिर बाद में एडजॉइंट से मल्टीप्लाई a और d, नहीं वो शॉर्टकट बता रहा हूँ, a और d को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ d होगा यहाँ a होगा और इन दोनों का साइन बदल देंगे, यहाँ माइनस c हो जाएगा और यहाँ माइनस b हो जाएगा। ये शॉर्टकट निकालने का तरीका है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है। एक्चुअल मेथड है एडजॉइंट निकालो फिर उसका कोफैक्टर लो, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट ये शॉर्टकट है 2/2 के लिए। तो ये हो जाता है आपका इनवर्स ऑफ दिस वन, राइट। उस तरह से उसका इनवर्स निकालेंगे तो दूसरे साइड में चला जाएगा। तो मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज u डैश v डैश एंड राइट साइड में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि y1 डैश y2 डैश y3 y1 डबल सिंगल डैश y2 सिंगल डैश, दिस इज द डिटर्मिनेंट। एंड हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं जो लिखा है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट ना। इसका डिटरमिनेंट निकाला। अभी कोएफिशिएंट y1 y2 को रिप्लेस कर देंगे, तो y2 इधर चला जाएगा, y1 इधर आ जाएगा और इधर माइनस y1 डैश और इधर माइनस y2 डैश इंटू b, 0 इंटू एफ ऑफ एक्स, 0 और एफ ऑफ एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा, आपको मालूम है कि ये जो पूरा टर्म लिखा है नीचे, दिस इज कॉल्ड एज द रॉन्स्कियन कांस्टेंट, राइट। देखो इसी को तो w बोलते हैं, u डैश v1, याद आ रहा है आपको। यस सर। और इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू y2 0 एंड y1 डैश इंटू f1, तो फाइनली हो जाएगा माइनस y2 डैश इंटू एफ ऑफ एक्स। एंड सेकेंड में ये 0 होके y1 y2 डैश नहीं आए, कुछ गलत हो गया। यहाँ पे वो देख लेते ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, मिस्टेक। हाँ y1 और ये y2 डैश है, ठीक है। y1 y2 और y1 डैश y2 डैश, यहाँ तक तो परफेक्ट है। तो उसका मैं साइन बदल दिया, सिर्फ उधर सिर्फ साइन बदला है और इसको इंटरचेंज किया, तो यहाँ y2 डैश होगा और ये y1 होगा, समझा ना। साइन बदलना था ना, इन दोनों डायगोनल में, एंटी डायगोनल में साइन बदलना था और दूसरे साइड में इंटरचेंज करना था। y1 और y2 डैश को इंटरचेंज कर दिया। अब जरा चेक कर लो वापस से क्या आता है। कुछ नहीं, यहाँ डैश नहीं आएगा और कुछ यहाँ डैश नहीं आएगा। फिर सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू y1 डैश 0 एंड y1 इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर आप डिटर्मिनेंट, ये जो w लिखा है उसको अंदर डिवाइड कर दो, तो u डैश एंड v डैश मैट्रिक्स इज नथिंग बट माइनस y2 एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई w एंड y1 एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई w। तो पहला एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से अगर कंपेयर करते हैं तो फाइनली आपको u डैश का वैल्यू मिल जाएगा माइनस y2 एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई w एंड v डैश का वैल्यू मिल जाएगा y1 एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई w, राइट। दोनों को इंटीग्रेट करो, बिकॉज u डैश का मतलब होता है du अपॉन dx एंड v डैश का मतलब है dv अपॉन dx। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये डैश निकल जाएगा, तो फाइनली u का एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस y2 इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई w। इज इट क्लियर? एंड v का एक्सप्रेशन जो आएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y1 एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई w। एनी डाउट? ये समझा कि नहीं फाइनली? यस सर। तो बस दिस इज द प्रूफ ऑफ द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर।